Mr. K of Kolkata on 1st July 2017, 100 TV set costing rupees 1400 each to Mr. M on consignment basis. Now, this first line doesn't contain any new point. Okay, কোনো new point নেই, simple what I have given in the last class, that particular thing have been clearly mentioned, so no problem in that, I hope so. Okay, 100 TV sets have been sent. The cost price of the each TV set is 1400 each. Now, the invoice price of the consignment was 1750 per set. That's the different point. Okay, here I am doing this particular sum only because of this particular thing. The invoice price of the consignment was 1750 per set. Okay, can anyone tell me what is invoice price? What is invoice price? सर सेल्स सर सेलिंग को इनवॉइस प्राइस बोलते हैं. सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस बोलते हैं? यस सर. नो 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 नो. सर कंसाइनी को कंसाइनर ने गुड हायर प्राइस में दिया है, वो है इनवॉइस प्राइस. अच्छा, तो तुम बोल रहे हो कि कंसाइनर जब गुड्स सेंड करेगा कुछ हायर प्राइस में सेंड करेगा, ठीक है, वो हायर प्राइस जो है, उस हायर प्राइस ज़्यादा जो प्राइस है उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस. सर या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस. अच्छा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस. ठीक है, नेक्स्ट. सर कॉस्ट प्लस लोडिंग चार्जेस. कॉस्ट प्लস লোডিং চার্জেস. তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য প্রফিট এন্ড দ্য লোডিং চার্জেস? স্যার লোডিং চার্জেস হচ্ছে এমন একটা চার্জেস, এখানে হয়তো চার্জেসটা কনসাইনারের দিক থেকে হতেও পারে নাও হতে পারে, বাট ও কস্ট প্রাইসটাকে ইনভয়েস এক্সট্রা প্রাইস হিসেবে যেহেতু ধরো যেহেতু প্রফিটটা ইত্যাদি আর্ন করবে কনসাইনি, তো ওর মনে হতেই পারে যে এত বেশি প্রফিট কনসাইনার আর্ন করছে, আমি কমিশন পাচ্ছি কম, তো ও টাকা কিছু মেরেও দিতে পারে, তো তাই জন্য লোডিং চার্জেস একটা চার্জেস. বুঝেছি, আমি বুঝেছি, তো পয়েন্টটা বুঝেছি. ওকে ওকে, এনি আদার? আচ্ছা, so what I feel, okay, first I explain this particular point, then I will go to that particular solutions. Okay, so whenever I'm talking about that particular invoice price, okay, যেটাকে আমরা শর্টে আইপি লিখছি, ঠিক আছে, if I'm talking about invoice price, invoice price generally termed as cost price plus loading charges. Okay, now what is that loading charges? Loading charges generally you can generally known as markup on cost price. এবার বক্তব্যটা হচ্ছে মার্কআপ মানে কি? মার্কআপ মিন্স সাম অ্যাড অন, ওরে সামথিং এক্সট্রা or add on upon cost price or extra amount upon cost price. Now, I'm not using the word profit, though in the general term, okay, or rather for the calculations purpose you have to understand it as a profit. ঠিক আছে, আমাদের ফর দ্য টাইমিং ধরে নিতে হবে ওটা প্রফিট. ওকে, ধরে নিতে হবে যে ওটা প্রফিট. ওকে, ফর দ্য টাইম বিং অ্যাকচুয়ালি. ঠিক আছে, তার মানে invoice price means cost price plus something extra. Okay, now what is the significance or what is the importance of charging that extra price upon the cost price? Okay, এই ফার্স্ট লাইনেই তো আমাদের সামটা শেষ হয়ে যেতে পারতো. টিভি সেট কস্টিং রুপিস 1400 each, the sum is and sum can be concluded down there. Okay, but still they are giving you the some invoice price. Why so? Okay, what is the importance of this invoice price? The importance of the invoice price is that the consignee actually does not knew the cost price of the goods. कंसाइनी को पता नहीं कॉस्ट प्राइस 1400 रुपया है,
ठीक है। कंसाइनी को पता है कि गुड्स आ रहा है 1750 रुपया में, सो वो सोचेगा कि मुझे 1750 रुपये या उससे ज़्यादा में मुझे सेल करना है। ओके, कंसाइनी के दिमाग में ये चाल सब ऑलवेज रहेगा कि 1750 में मुझे गुड्स मिला है, सो हम गुड्स को ऑलवेज 1750 के ऊपर जाके सेल करेंगे, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली creates our motivation in the mind of the consignee to sell the goods over the invoice price. Okay, अब देखो, सपोज गुड सेल हुआ 2000 में, सपोज ओके गुड सेल हुआ 2000 में, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस, व्हाट कंसाइनी थिंग्स चलो 1750 का प्राइस था, हम 2000 में सेल किया, सो 250 इज द पर टीवी सेट प्रॉफिट. But actually what consignor thought, yes, the cost price is 1400, the goods have been sold at 2000, from that we are deducting that commission of that particular consignee. Okay, now I will get my higher profit. Okay, suppose सिंपल सोचो, 1400 और 2000 का डिफरेंस है 600 रुपया, 1750 और 2000 का डिफरेंस है 250 रुपया, कौन सा अच्छा है? ऑब्वियसली द 600. Okay, so to give the extra motivation upon the consignee, the consignor is using that particular technique of invoice price. ও কি করে কস্ট প্রাইসের উপর একটা এক্সট্রা পার্সেন্টেজ অ্যাড করে ও ওখানে শো করে দেয়, ঠিক আছে। নাও but in the accounting concept or the account in a basic accounting methods, okay, you can't show such a embedded profit, or you can say that undisclosed profit. ওকে, আমি এখানে 1400 জিনিসটা 1750 করে দেখিয়ে দিলাম, টু এখানে ডিফারেন্সটা যাই হোক না কেন 350 রুপিস ইজ দ্য ডিফারেন্স, সো ইউ আর শোয়িং 350 রুপিস মোর, ওকে, বাট দ্যাট পার্টিকুলার 350 রুপিস ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি মিনিং, ঠিক আছে। আমার কাছে কোনো মিনিং নেই, আমার মন ইচ্ছা হলেও আমি ওটাকে চাপিয়ে দিলাম, তা তো হয় না, ঠিক আছে। বাট ইন দ্য অ্যাকাউন্টস ইউ কান্ট শো সাচ থিংস, ওকে, ইউ মাস্ট ডিসক্লোজ এভরি বিট অফ থিং, ওকে, আমাকে যা হবে পরিষ্কার দেখাতে হবে, ওকে। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ওকে, ইউ চার্জ or rather you write this at 1750, okay, then on the opposite side means either on the debit side or on the credit side, whatever the case is may be, okay, you just cancel out the extra 350 rupees, ओके, तो एक साइड पे तुम 1750 दिखा है, दूसरा साइड पे 350 कैंसिल कर दिए, तो टोटल इफेक्ट कितना आएगा? टोटल इफेक्ट आएगा 1400 का, ओके। सो दैट इज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. You can apply this invoice price method, you can show that particular 1750, no problem in that, but you need to disclose all the things where it says that you just cancel out the extra loading charges, okay, you just cancel out extra loading charges. 1750 था, उसमें 350 रुपया ज़्यादा है, so just cancel out the 350 rupees, okay, that is your point, okay. So this is the treatment of the invoice price, okay. So यहाँ पर तुम देख रहे हो 1400 is your cost price, 1750 is your invoice price, so loading charges कितना होगा? So loading charges will be 350 per CB set. एक चीज़ ध्यान में रखना, loading charges is only applicable for stock or goods, okay, गुड्स के ऊपर सिर्फ लोडिंग चार्जेस अप्लाई होता है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर लोडिंग चार्जेस अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी कोई सोचता है एक्सपेंसेस के ऊपर भी लोडिंग चार्जेस लगेगा, ठीक है, नहीं, एक्सपेंसेस के ऊपर लोडिंग चार्जेस नहीं रखता है, लोडिंग चार्जेस सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर रखता है, ठीक है। वेरी केयरफुली माइंड दैट, ओके। नाउ मिस्टर के पेड 1200 as a freight and 800 as a insurance, so it is the expenses of the consignor. Mr. M received the consignment on 15 July 2017, accepted a bill for 50,000 payable after 3 months drawn by Mr. K. ये मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी समझा दिए थे, यहाँ पर हम यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट नहीं बना के दिखाएंगे, ठीक है, एक सम में बना दिया और नहीं बनाएंगे हम, अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो। Next, on 31st December 2017, Mr. M sent an account sales to Mr. K, and it was stated in the account sale that Mr. M was able to sell only 60 set at the invoice price. देखो, Mr. M was able to sell only 60 set at invoice price, मतलब अगर वो 1400 में भेजता और अगर 1400 में ही सेल होता, ठीक है, सो मेरा कंसाइनर का प्रॉफिट कहाँ है? कंसाइनर का प्रॉफिट कुछ नहीं है, सो
ये इनवॉइस प्राइस में सेल हुआ है, सो कंसाइनर विल एबल टू अर्न 350 per TB set. So actually the invoice price plays a important role upon the decisions of on the particular consignee. Okay, so 60 TB set at invoice price and further 10 TB set at the rate 1900 per set. M disclose a bank draft with the account sales for the balance due to Mr. K after deducting the following charges: go down rent 2000, fire insurance premium 1100, and commission at the rate 6%. Now which type of commission they didn't mention. If nothing is mentioned, just consider Ordinary. ordinary commission. Ordinary commission. Okay, so consignment account in the books of Mr. K. Okay, so just consignment account मुझे शो करने बोला है. Okay, so हम just मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है. so एक एक करके दिखाते. So in the books of Mr. K, consignment to Mumbai account, because M is actually M of Mumbai, they have mentioned K of Kolkata, M of Mumbai. So consignment to Mumbai account and the thing is there. Okay, so particulars, amount rupees. Though the date is mentioned here, I feel don't write the date. Date लिखने की ज़रूरत नहीं है. It is not at all mandatory all the time. Okay, so first thing, what is your value of the goods? ओके तुम अभी बोलोगे सर वैल्यू ऑफ द गुड्स है तुम्हारा 1400 रुपया. नहीं, वैल्यू ऑफ द गुड्स होगा 1750 बिकॉज यू नीड टू कंसिडर द इनवॉइस प्राइस. okay, so first write down the value of the goods at invoice price. So to goods sent on consignment, invoice price of the goods sent, it is 100 into 1750, so 1,75,000. 100 टीवी सेट था, एक टीवी सेट का 1750 रुपया करके वैल्यू था. सो 100 इंटू 1750, इट इज 1,75,000. जब भी ये करोगे तब भी तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए. अभी तो हम 1750 लिखे, बट एक्चुअल तो प्राइस था 1400 रुपया, सो 350 रुपया हम ज़्यादा लिखे. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैंसिल आउट द एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं लोड. ओके, मुझे लोडिंग कैंसलेशन करना है. ठीक है, कहाँ पर लिखे हो 1,75,000 डेबिट साइड पे. लोड कहाँ पर कैंसिल होगा, लोड ऑलवेज कैंसिल्स ऑन द ऑपोजिट साइड. मतलब ये डेबिट साइड पे लिखे हो तो कैंसिल करोगे कहाँ पर, कैंसिल करोगे क्रेडिट साइड पे. सो जस्ट राइट, सी दैट बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोड ऑन गुड्स सेंट 100 इंटू 1750 माइनस 1400, एक्स्ट्रा जितना अमाउंट था 1750 मतलब माइनस 1400 तो कितना आता है 350. ओके, सो 350 इंटू 100 इट विल बी 35,000. सो एक्चुअली तुम अगर देखोगे तो इफेक्ट for only these two entry, what will be the net effect? The net effect is 1,40,000. okay, 1,400 करके 100 bucks, 100 TB sets. okay, so the first point completed. Now the invoice price of the consignment, okay fine. Now Mr. K paid 1,200 as a freight and 800 as the insurance. So it is the expenses of the consignor. So उसको बिठा देते, क्या बोल के पास करेंगे, बैंक बोल के. So to bank expenses of consignor, freight 1,200, insurance 800, दोनों को ऐड करके आउटर कलम 2,000. नेक्स्ट सेल के बारे में कुछ बोला गया था. अच्छा, बिल का कोई एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज मैंने बोला था बिल का एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता है. बिल का एंट्री अगर होगा तो बिल का एंट्री आता है तुम्हारा कंसाइनी अकाउंट में. ओके, now on 31st December 2017, Mr. M sent an account sales to Mr. K and it was stated in the account sales that Mr. M able to sell only 60 TB set at invoice price and for the 10 TB set 1900. okay, so 60 TB set सेल हुआ 1750 करके, 10 TB सेट सेल हुआ है 1900 करके. ठीक है, सो उसको हम लोग कंसाइनी अकाउंट से पास कर देंगे. सो बाय मिस्टर एम अकाउंट सेल प्रोसीड्स, देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 60 सेट एट द रेट 1750 जो इनवॉइस प्राइस में था. सो 1750 into 60, it is 1,05,000 and 10 sets at rupees 1900, so it will be 19,000. If I add it, then it will be 1,24,000. So sale proceeds came to 1,24,000. डन. नाउ उसके बाद लास्ट में बोला था कि तुम्हारा गो डाउन रेंट 2000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1100 एंड कमीशन इज 6%. ओके, सो उसको बिठा देते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंसाइनी, सो कंसाइनी के नेम से बिठाएंगे. सो मिस्टर एम अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, गो डाउन रेंट 2000 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1100, सो टोटल इज 3,100. नेक्स्ट,
मिस्टर एम अकाउंट कमीशन, अगेन आई एम सेइंग इट्स ऑर्डिनरी कमीशन, ओके, किसके ऊपर होगा, सिंपली ऑन कैलकुलेटेड अपॉन द सेल्स, सो 1,24,000 के ऊपर 6% करें, सो इट विल बी 6440, ओके, सो इट विल बी योर commission of Mr. M. Now the last thing is that कितना टीवी सेट सेंड किए, 100 टीवी सेट्स were sent, okay, out of which 60 plus 70 have been sold, so 30 is remaining, okay, so 30 टीवी सेट्स का मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल लॉस नहीं है, सो विल मूव ऑन टू द कैलकुलेशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओके, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, जब भी हम स्टॉक का बात कर रहे हैं, ठीक है, देन स्टॉक का बात कर रहे हैं, दैट मींस दैट शुड बी कैलकुलेटेड एट इनवॉइस प्राइस, ओके। अब उसके ऊपर जितना लोड है तुम कैंसिल बाद में करो, ठीक है, बट व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द गुड्स, ओके, देन यूज दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस उसके साथ अटैच होगा ही होगा, जस्ट सी दैट वैल्यू इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स, ओके, कितना कैलकुलेट किए, देखो 100 माइनस 70, 100 सेंड किए थे, 60 प्लस 10 मतलब 70 सेल हो गया, सो बचा कितना है, नेक्स्ट 30 इज द रिमेनिंग, ओके, सो 30 टीबी सेट्स एट द रेट 1750, सो द वैल्यू केम एज 52,500। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग दो चीज़ करते हैं, एक है तुम्हारा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर करते हैं, दूसरा प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी करते हैं। तो कंसाइनर का पहले कर लेते हैं, सो ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, 2000 कंसाइनर का एक्सपेंसेस था, दिखा देते हैं, 2000 is the expenses of the consignor, okay, for how many sets, for 100 TV sets, okay, so what will be the value for the 30 TV sets, okay, so it will be 2000 divided by 100 into 30, so it will be 600, so if I added the value, okay, one thing, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है तुम्हारा प्रोपोर्शनल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी, बट कंसाइनी का दो एक्सपेंसेस यहाँ पर चेक करो, एक है तुम्हारा गोडाउन रेंट, दूसरा तुम्हारा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बोथ आर रिकरिंग, ठीक है, बोथ आर रिकरिंग, सो देयर इज नो प्रोविजंस ऑफ कैलकुलेटिंग दैट पर्टिकुलर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं, तो किसके ऊपर प्रोपोर्शन करेंगे, ठीक है, सो दैट विल बी आवर वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ओके, सो इट इज 52,500 इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स, उसके साथ एक्सपेंसेस ऐड किए प्रोपोर्शन करके 600, तो टोटल वैल्यू आया 53,100। सो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा साइड में बिठाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड, ओके, सो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट invoice price of 30 sets, mind it, invoice price of 30 sets, it is 53,100। मैंने क्या बोला था, जब भी इनवॉइस प्राइस होगा जस्ट कैंसिल आउट द लोड, ओके, इनवॉइस प्राइस होने से लोड कैंसिल करो, चलो लोड कैंसिल करते हैं, सो ऑन द डेबिट साइड इट विल बी टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोड ऑन अनसोल्ड स्टॉक, देखो मैंने लिखा पूरा क्लियरली लिख दिया, लोड ऑन अनसोल्ड स्टॉक कितना करके है, तुम्हारा इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना था, 350 रुपया, 1750 से 1400 माइनस किए, ओके, सो 350 इज योर लोडिंग अमाउंट, okay, so loading amount 350 on per TV set, so what will be the value for the 30 TV set, so it will be 30 into 350, it will be 10,500, okay, so load on unsold stock 30 sets into 350, it is 10,500। अब सिंपल क्रेडिट साइड को एड अप करो, ठीक है, सो इट इज 35,000 लोड प्लस 1,24,000 प्लस 53,100, 2,12,100 is the total। now deduct the debit side, 1,75,000, 2,000, 3,000, 7,440 commission and 10,500 is the loading amount, so if you find out the profit or loss is 14,060 rupees is the profit on consignment, okay, so here is the end of the sum, okay। एक चीज ध्यान में रखना, ये सम इनवॉइस प्राइस से है, इनवॉइस प्राइस जब भी बिठाओगे ऑपोजिट साइड में जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू कैंसिल आउट द लोड, ओके, और लोड सिर्फ स्टॉक के ऊपर ही होता है, अगर हम बोल भी देते तो भी अच्छा होगा, ठीक है, कि थोड़ा दिमाग में रहेगा, ठीक है। लोड का ट्रीटमेंट किस में होता है बता देते हैं, फर्स्ट वन गुड्स एंड के ऊपर होता है, सेकेंड वन एबनॉर्मल लॉस अगर होगा उसके ऊपर होगा, लास्ट में तुम्हारा अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा उसके ऊपर होगा, ठीक है। ये तीन जगह को छोड़कर और किसी जगह पे तुम्हारा लोड का मतलब इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखो हम जब सेल कैलकुलेट किए, सेल के ऊपर तुम्हारा कोई लोडिंग का पोर्शन नहीं आता है, ठीक है। हम क्या बोले, जो बोल दिए ध्यान में रखना, लोडिंग का कैलकुलेशन किसके ऊपर होता है, नंबर वन गुड्स एंड, नंबर टू
एबनॉर्मल लॉस, एंड थर्ड वन इज द क्लोजिंग स्टॉक और द कंसाइनमेंट स्टॉक। ये तीनों को छोड़कर बाकी किसी जगह पे लो इनवॉइस प्राइस का एप्लीकेशन नहीं होगा। सर ये तीनों में ही क्यों होता है, वाई? बिकॉज इन तीनों में स्टॉक रहता है। मैंने बोला था ना कि इनवॉइस प्राइस एप्लीकेबल ओनली अपॉन द स्टॉक्स, ठीक है। इन तीनों में ही स्टॉक का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अगर गुड सेंड होता है सो इट विल बी द व्हाट यू कैन से, इट विल बी द इनवर्ड आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस इज वन ऑफ द आउटवर्ड आइटम एंड क्लोजिंग स्टॉक व्हाट रिमेन्स, ओके। और सेल में क्या होता है, अब तुम पूछ सकते हो सर सेल में क्यों इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट नहीं होता है? बिकॉज सेल में जो होता है, सेल फॉर द सेल दैट पर्टिकुलर थिंग इज टू बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, उसको लोडिंग नहीं बोला जाता है, ठीक है। तुम किसी को सेल कर रहे हो तो इट विल बी द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। पहले कोई एक बोला था कि इनवॉइस प्राइस मतलब दिस इज द सेलिंग प्राइस, नो, okay, selling price means to selling price only, okay, that means whichever thing is recovered from the debtors or rather from the cash sales, it is to be termed as the selling price. There is a difference between the invoice price and the selling price. Invoice price सिर्फ consignor consignee को धोखा देने के लिए बनाता है, ठीक है। बट सेलिंग प्राइस इज नॉट लाइक दैट। सेलिंग प्राइस इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो रियलाइज्ड होता है, ठीक है। या बैड डेट फैट डेट का हम छोड़ देते हैं, नॉर्मली द सेलिंग प्राइस व्हिच इज term to be or expected to be recovered from the debtors, okay. So that is the selling price, okay. So there is a very important difference between the cost price and the selling price and the invoice price, ठीक है। तो सेल में तुम्हारा कोई इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट नहीं होता है, सेल मीन्स द सेल प्राइस, ठीक है। बाकी जहां पर भी गुड्स होगा देयर इज अ वैल्यूएशन डिफरेंस, ठीक है। हम उसको कॉस्ट प्राइस में करें या इनवॉइस प्राइस में करें, स्टॉक होगा तो उसी में तुम्हारा इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट आता है। तो स्टॉक कहाँ पर होगा, एक गुड्स सेंड में होता है, एक एबनॉर्मल लॉस में होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक में होता है, बस, ओके। सो दिस इज योर सम। किसी का कुछ डाउट है तो जल्दी बताओ, आज बोल रहे जल्दी बताओ बिकॉज मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म होने वाला है। किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। In this sum, this particular sum actually gives a value of that particular thing। यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, मतलब इनवॉइस प्राइस और